Okay, very good afternoon. Yeah, so in last lecture, we already completed integrated rate law for the first order reaction, right? We have derived integrated rate law for first order reaction, and we have derived the half-life for the first order reaction. We solved some numericals. Now we'll go to the next question, that is derive integrated rate law for the first order reaction. A gaseous form gives B gaseous plus C gaseous in terms of pressure. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करना है. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन है. सो लास्ट टाइम वी ऑलरेडी derived the integrated rate law for first order reaction in terms of concentration. अभी अगर आपका concentration in terms of pressure में दिया रहेगा, right? So in short we have to derive integrated rate law for gas phase reaction. ठीक है, गैस फेज रिएक्शंस के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करना है. सो व्हाट विल बी योर आंसर, राइट? लेट टेक फॉर द गैस फेज रिएक्शन, ठीक है, फॉर द गैस फेज रिएक्शन व्हाट इज द रिएक्शन दैट हैज गिवन A gaseous form, it will use B gaseous plus C gaseous. Consider this is a decomposition reaction जहां पे A जो है वो डिकम्पोज हो जाए B and C में. Now at initial we consider at initial or we can say at the start of the reaction. At initial time we have only reactant, right? Initially अपने पास क्या रहेगा, reactant रहेगा. कोई भी अगर chemical reaction आप start करते हो तो at time t is equal to 0, मतलब at initial time we have only the reactant. Now the pressure of that reactant, we can consider that pressure is equal to P, and as it is an initial time or starting time, so we'll write it as a Pi. So what is actually Pi? ये जो Pi क्या बनेगा? That is the initial pressure of A, which is considered as a Pi. At the same time, देखो at initial position reactant present रहेगा तो उसका pressure क्या है? Pi रहेगा. But at initial state आपके पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो 0, मतलब प्रोडक्ट तो फॉर्म होता ही नहीं है, right? At time t is equal to 0 we have only the reactant. So at that time the pressure of that particular product will be considered as a 0. ये 0 0 रहेगा. ठीक है. Now suppose the reaction started at particular time t, so we can write as at time t. After certain period of time, what will be the pressure of that particular A? ठीक है, the pressure of reactant A at time t. ये कैसे निकालोगे? वो जो प्रेशर जो रहेगा वो आप क्या कंसीडर करोगे? आप let it be PA. PA will be the pressure of reactant A at time t. तो वो प्रेशर कैसे रहेगा? So consider that initial pressure of A, that is nothing but Pi, it is decreases by x. It is decreases by an amount of x within a time t, right? तो बचा हुआ प्रेशर क्या रहेगा? वो टोटल मतलब एक्चुअली इनिशियल प्रेशर कितना था? एक का Pi. अभी क्या हो गया कि ये रिएक्शन चालू हो गया है. जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, व्हाट हैपन, ये आपका concentration of A goes on decreasing and the concentration of product will increases. मतलब A जो है वो कंज्यूम हो रहा है और जो आपका प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. हमने वो कंसीडर किया कि ये प्रेशर जो है वो x अमाउंट में डिक्रीज होगा. तो बचा हुआ प्रेशर क्या रहेगा? That is Pi minus x. This is the amount of pressure left at time t. ठीक है. At the same time, what are the pressures of the B and C? मतलब कितना एक्चुअली प्रेशर एक्चुअली यूज डिक्रीज हो गया है? x से डिक्रीज हो गया ना, तो यहाँ पे इतना फॉर्म हो गया, इसके लिए वो रिएक्टेंट में से डिक्रीज हो गया, राइट?
Now what is the pressure of the reactant A at time t? So we can write here pressure of reactant at time t. Pressure of the reactant at time t क्या रहेगा? Pressure of the reactant, reactant क्या आपने पास यहाँ पे A कंसीडर किया ना, तो pressure of the reactant which is nothing but A at time t क्या रहेगा? We will consider that is PA. PA क्या बनेगा? ये pressure of the reactant A. तो वो कितना दिया हुआ है एट टाइम टी? PI माइनस एक्स. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PI माइनस एक्स. ये आपको यहाँ से आपने जनरेट किया हुआ है, राइट? विल गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ये अपना इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? नाउ द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट B एंड C एट टाइम t हमें निकालना है, ठीक है? अभी हमें क्या करना है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या आपके पास? B एंड C फॉर द गिवन रिएक्शन. तो प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट B अगर आपने निकाला, प्रोडक्ट जो है वो हम लोग B का कंसीडर कर लेते हैं, which is equal to we can denote it by PB. PB मतलब pressure of the product B, which is equal to what? That is equal to how much at time particular. ये जो रहेगा that is at time T रहेगा, right? ये pressure of the product at time T. तो ये बनेगा आपका कितना at time T pressure X है. उसी तरह से pressure of the product C at time T is equal to what? PC. This will be considered as the pressure of the product C, which is also equal to X. ठीक है? Now, what is the total pressure? तो अभी total pressure क्या रहेगा? Total PI plus X. क्या बनेगा total pressure बताओ? Very good. Can we have to write total pressure at time T? हम लोग को वो particular time पे ही निकालना है. Can we consider that is total pressure is equal to P? P is equal to what? That is the thing but sum of the partial pressure of all the reactant or product present in the at that time. ऐसा होता है ना total pressure. So PA plus PB plus PC हो गया, correct? That is equal to total pressure. अभी ये PA क्या मिला हुआ आपको? PA का वैल्यू कितना मिला आपको? यहाँ पे निकाला है देखो PI minus X. चलो बताते जाइए. PB क्या रहेगा? X plus X plus X plus X. ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे क्या मिला? दैट इज P इज इक्वल टू PI प्लस एक्स, ठीक है? अभी x का वैल्यू क्या बनेगा? सो देयरफॉर व्हाट इज x? x इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज P माइनस PI, ठीक है? दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. नाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1, है ना? तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग by substitution of value of x in equation number 1, ठीक है? अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो क्या बनेगा आपका? इक्वेशन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू PI माइनस एक्स. तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, ठीक है? ये बन जाएगा PI माइनस, अभी ये ब्रैकेट में डाल देते हैं. एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको यहाँ पे? P माइनस PI. जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो वो क्या बनेगा? विच इज इक्वल टू PI प्लस P. हाँ यस. सो मैं सॉल्व कर देता हूँ. देखो यहाँ पे स्टेप है ना, मतलब जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो थ्योरी पार्ट में या फिर यूनिट टेस्ट रहेगा, सेमेस्टर रहेगा या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो प्लीज इसको स्टेप मिस मत करो, लिखते जाइए आप. कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट स्टेप लिख दीजिए. सो PI माइनस P प्लस PI हो गया, राइट? तो ये जो बन जाएगा विच इज इक्वल टू, सो व्हाट इज PA? दैट इज PA का वैल्यू क्या मिल गया? दैट इज इक्वल टू 2PI माइनस P, ठीक है? ये हो गया आपका PA का वैल्यू, राइट? नाउ वी नो दैट दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो वो क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू 2.303. ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. T देन log टू द बेस्ट 10 ऑफ P, log टू द बेस्ट 10 ऑफ क्या था आपका?
A naught A naught upon 80. बराबर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अगर आपके पास A naught का वैल्यू जो है, राइट, एट A naught मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दैट रिएक्टर, क्या था वो A naught इनिशियल पे, PI, तो वो बनेगा PI, राइट, एज वेल एज एट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, राइट, एट टाइम T, या हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे प्रेशर ऑफ द रिएक्टर A एट टाइम T इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, PA रहेगा, है ना, विच इज इक्वल टू क्या मिला आपको, PA का वैल्यू 2PI माइनस P। ओके, नाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में A naught की जगह पे क्या आ जाएगा, PI आ जाएगा, राइट, और AT की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगा, तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log टू द बेस 10 ऑफ A naught की जगह पे क्या आएगा, PI, और नीचे क्या बनेगा, 2PI माइनस P, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर फाइनल प्रूफ। सो वी हैव डिराइव्ड integrated rate law for the first order reaction for the gaseous reaction, ध्यान रखना, in terms of pressure। अभी होता क्या है कि आपको न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इसी के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे PI क्या रहेगा, that is nothing but the initial pressure, और P क्या रहेगा, P is nothing but the that is total pressure at Total time pressure. T, but वो at time T given time पे रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये इजी हो गया, तो ये डेरिवेशन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये पूरा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी तरह से हमने इजीली इसको सॉल्व किया है। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन प्रॉपर्ली, राइट। नाउ they may ask numerical based on this question। देखो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल नहीं है ज्यादा इसके रिलेटेड, पर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, राइट, बिकॉज दे आर गिवन दिस डेरिवेशन, ये आपके पास फॉर्मूला है। सो एक एग्जांपल में आपको बता, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते, तो हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते इस केस में, राइट। ये देखो, ये एग्जांपल है, एक सेकेंड, right, so we'll solve the example based on this integrated rate law for the that in terms of pressure of the for the given reaction, ठीक है। so according to that we'll solve this example। so what is an example, देखो, following data were obtained during the first order decomposition of SO2Cl2 at the constant volume। reaction दिया हुआ है, that is SO2Cl2, SO2Cl2 गैसियस फॉर्म में डिकम्पोजेस टू SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। टाइम क्या है, 0, मतलब क्या है, एट टाइम T इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम। व्हाट इज द टोटल प्रेशर, और व्हाट वाज द प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 0.5 बार, एंड नेक्स्ट टाइम क्या दिया है, T इज इक्वल टू 100 सेकंड दिया है, ध्यान रखना। तो प्रेशर कितना बन गया, 0.6। नाउ कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सो वेरी सिंपल, बट व्हाइल राइटिंग द आंसर प्लीज write formula first, because the marks will be given, means that the for each and every step, तो marks distribution जो होता है वो step wise होती है, तो formula आपको लिखना ही है, then you have to substitute the value and find out the answer with write the correct answer and correct unit, for correct answer and correct unit you will get the marks। तो कैसे होगा इसमें, तो हम लोग पहले लिख देते हैं, तो PI मतलब इनिशियल प्रेशर कितना रहेगा इसमें बताइए, इनिशियल प्रेशर क्या होगा, PI 0.5 बार, राइट, एंड देन टोटल प्रेशर कितना देगा इसमें, टोटल प्रेशर कितना बनेगा 0.6 बार, करेक्ट है। यस सर। और टाइम कितना रहेगा 100 सेकेंड, करेक्ट। ये वैल्यूज दिए, कुछ नहीं, मैंने यहां से लिया हुआ है, एट टाइम T इज इक्वल टू 0 प्रेशर इज इक्वल टू 0.5, एट टाइम T इज इक्वल टू 100 सेकेंड टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.6, एंड टाइम जो दिया हुआ है 100 सेकेंड, बस ये हमारा वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट विल राइट द फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय
T. हाँ, ये फॉर्मूला लिखना कंपल्सरी है, ध्यान रखना, बिकॉज फॉर्मूला कैरी मार्क्स। सो फॉर्मूला नहीं लिखा तो उतने मार्क्स फॉर्मूला के आपके कट हो जाएंगे, 2pi माइनस p। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में या थ्योरी एग्जाम में, जो कुछ भी आपका कॉलेज का थ्योरी एग्जाम रहेगा, उसमें आप प्लीज पहले फॉर्मूला लिखो, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, फाइंड आउट द आंसर and write the answer along with the unit. This is the rule. Okay. Now we'll substitute the value. K is equal to 2.303. T कितना दिया हुआ है इस पे 100 सेकेंड है। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो वो क्या 5 दिखेगा आपको, इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 रखा है, पर ध्यान रखना ये 100 सेकेंड है इसमें। लॉग टू द बेस्ट 10 ऑफ व्हाट, पी कितना इसके अंदर इनिशियली 0.5 रहेगा, और 2pi माइनस, इसको मैं ब्रैकेट पे ले लेता हूँ, 2pi मतलब 2 इंटू फिर से 0.5 बनेगा ना, ये प्रेशर जो है बार में, तो 0.5 बार हो गया, माइनस p कितना रहेगा यहाँ पे 0.6 ना, 0.6 बार। यस यस, जस्ट हमने क्या किया, ये सब्स्टिट्यूट किया है। सो विच इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 100 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, अभी ये 0.5 ऊपर एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ नीचे देखो, यहाँ पे ये 0.5 इंटू 2 है, मतलब क्या बनेगा 1 माइनस 0.6 क्या बन गया 0.4. 0.4 बार, और बार बार वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 0.5 डिवाइड बाय 0. ठीक है, मतलब अगर 0.5 डिवाइड बाय 0.4 अगर आप सॉल्व करते तो ये कैसे मिलेगा, विच इज इक्वल टू 5/4, विच इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 10, 1.25. बराबर ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.303 डिवाइड बाय 100 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये 1.25 ले लेते हैं, राइट। अभी ध्यान देना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस केस में, यू हैव टू चेक द लॉग, बिकॉज जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में सिर्फ लॉग दिया हुआ है, लॉग है तो फिर आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में वो लॉग की वैल्यू नहीं मतलब देंगे वो, यू हैव टू चेक द लॉग फ्रॉम द लॉग बुक और लॉग टेबल। तो जहां पे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, स्टेट बोर्ड एग्जाम में दे प्रोवाइड देयर ओन लॉग बुक, फ्रॉम दैट ओन लॉग बुक यू हैव टू कैलकुलेट द लॉग। तो फिर से लास्ट टाइम भी हमने लॉग कैलकुलेट किया था, बट यहाँ पे मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ टू चेक द लॉग। ठीक है, डिवाइड बाय 100, अभी इसका 1.25 का पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, 1.25 है, पॉइंट के पहले 1 मतलब एक डिजिट है, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, 1 नहीं एक डिजिट है, ध्यान रखना एक डिजिट है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 0 पॉइंट। अभी आपको क्या करना है, 12 का 5 में लॉग देखना है, तो मेरे पास लॉग बुक है, हम लोग लॉग बुक से 12 का 5 में लॉग देख लेते, ठीक है, ध्यान रखना जरा, 12 का 5 में हमें लॉग देखना है, तो मैं आपको लॉग बुक से दिखा देता हूँ। देखो ये अपने पास एक लॉग बुक है, राइट। अभी यहाँ पे लिखा है देखो लॉगरिथम, तो थोड़ा वैल्यू दिखेगी नहीं, बट आपको पता चलेगा हाउ टू कैलकुलेट। तो ये देखो यहाँ पे 10 11 12 13 14 ऐसे है, और ऊपर पे ये 0 1 2 3 4 5 और बाद में मिन डिफरेंस है। अभी हमें क्या करना है, 12 का 5 में चेक करना है, तो देखो 10 11 12, तो मैं यहाँ पे स्केल रख रहा हूँ, ठीक है, 12 का वैल्यू ये, फिर 12 का 0 1 2 3 4 5, हमें 12 का 5 में चेक करना है, 12 का 5 में वैल्यू है 0969, ठीक है। तो 0969 मिन डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे कुछ नंबर ही नहीं है, 12 का 5 में ही देखना है ना, तो मिन डिफरेंस कुछ है ही नहीं उसके अंदर ऐड करने के लिए, तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई 0969। तो इस तरह से आपको लॉग चेक करना ही पड़ेगा, एनी और एनी कंडीशन, राइट। तो 0969 मेरे पास क्या आ गया, उसका वैल्यू आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका वैल्यू जो है 0969, तो 0.12 का 5 में मुझे मिला 0969, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट, थोड़ा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के बाद अगर आप, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है, तो अब अगर आप देखोगे तो 0.2231 इसका ऊपर वाले का कैलकुलेशन आ रहा है, डिवाइड बाय 100। अभी इसको आपको जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए, सिंपल वे में मैंने 10 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2.231 हो गया, और नीचे हो गया आपका 1000, तो यही वैल्यू क्या आ जाएगी 2.231 इंटू 10 टू दी। अच्छा ध्यान देना, अभी यहाँ पे देखो ये बार बार तो कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे यूनिट पेंडिंग है, सेकंड है टाइम का, मतलब 1/t, मतलब यहाँ पे s रहेगा,
तो वो जो S से ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, S इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, तो K क्या वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज इक्वल टू 2.231 into 10 to the power -3, like that. Easy. So it's very simple. So simple calculation रहेगा, simply आपको फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिखना है, करेक्ट, इजी हो जाएगी, राइट। सो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल। सो एनी डाउट, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, इफ नो देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सिंपल एग्जांपल है, No, sir. यस। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। एक्चुअली अभी देखो, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देन वी हैव टू मींस कैलकुलेट दैट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने फिलहाल जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसके लिए कैलकुलेट किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और उसका हाफ लाइफ निकाला था, राइट। नाउ बिफोर मूविंग टू दैट, बिकॉज कितना है 10 मिनट्स में, ओके। सो विल सॉल्व वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, राइट। यस, देखो दिस इज एन आईएमपी एग्जांपल, ये भी एक आईएमपी एग्जांपल है, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। देखो क्या दिया हुआ है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of first order reaction is 3 times the time required for 90% completion. आपको ये प्रूव करना है, दिखाना है, ठीक है। फॉर द सेम रिएक्शन 99.9% completion of first order reaction is 3 times the time required for 90% completion, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, सो इसके लिए मैं अभी आपको एक फटाफट से सॉल्यूशन में बता देता हूं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, T1 is equal to 3 टाइम T2, ऐसे आपको इन शॉर्ट प्रूव करना है 3 टाइम्स। तो अपने पास केस 1 देखो, केस 1 क्या है, व्हाट इज द केस 1, द इनिशियल कंसंट्रेशन जो रहेगा वो हम लोग अज्यूम करेंगे 100 इनिशियली, तो आपके पास रिएक्टर 100% रहेगा। नाउ फॉर दैट व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A और रिएक्टर एट टाइम T, एट टाइम T वो कितना बनेगा, देखो फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, 99.9% कंप्लीशन हो गया है, तो बचा कितना आपके पास 100, 99.9 which is equal to what, 0.1, ठीक है। सिमिलरली वी हैव केस 2, केस 2 में कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट कितना है, 100 ही रहेगा, राइट। बिकॉज जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा एट दैट स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एट टाइम t is equal to 0, concentration of reactant will be 100%. now what is the concentration of A at time t when there is a 90% completion, right? तो वो बनेगा 100 minus 90, तो वो आ गया आपका 10, right? तो ये हो गया आपका concentration of A naught and AT at different completion of that particular reaction, right? Now we'll go for case 1 first. Case 1 के लिए let's take K will be your what, we'll write the formula first, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपके पास, रेट कांस्टेंट K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 of concentration of A naught upon AT, ये है आपका, राइट। नाउ केस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल कंसीडर दैट इज इक्वल टू K1, ये आपका केस 1 के लिए हो गया, K1 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो 2.303 टाइम, तो एज टाइम विल बी T1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका log टू द बेस 10 ऑफ, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, केस 1 के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 100 डिवाइड बाय ये क्या बन गया 0.1, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। K1 is equal to 2.303 डिवाइड बाय T1 log टू द बेस 10 ऑफ 100 डिवाइड बाय 0.1, मतलब कितना रहेगा, अगर 100 डिवाइड बाय 0.1 है, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा आंसर, इसको
100 डिवाइड बाय 0.1, अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 डिवाइड बाय 1, मतलब हो गया वो 1000 इन शॉर्ट। तो अगर मुझे लिखना है log टू द बेस 10 ऑफ 1000, तो वो बनेगा, तो यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ मैं, और इसका शॉर्ट कैलकुलेशन क्या बनेगा, log टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर 3 हो गया, राइट। इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ a raised to x, तो ये क्या बनेगा, x into log टू द बेस 10 ऑफ a, तो मतलब 3 into log टू द बेस 10 ऑफ 10 हो गया। देखो log टू द बेस 10 ऑफ 10 का वैल्यू होता है 1, तो आंसर क्या आ गया इसमें 3। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप चाहे तो यहाँ पे दिखा दीजिए साइड में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ 3। सो k1 इज इक्वल टू व्हाट, 2.303 t1 log टू द बेस 10 ऑफ, ओ ठीक है 10 टू दी, अच्छा मैंने डायरेक्ट 3, ठीक है 10 टू द पावर 3, इसका मैं डायरेक्ट अभी वैल्यू लिख देता हूँ, k1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t1 into 3। ठीक है, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। नाउ विल गो फॉर केस 2। आप बताइए अभी केस 2 क्या कहलाए। सेम विल कंसीडर k2 2.303 डिवाइड बाय t log टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट कितना बनेगा इसमें 100 डिवाइड बाय 10, सो 10 बाय 100 बाय 10 बन गया आपका 2.303 डिवाइड बाय t log टू द बेस 10 ऑफ 100 बाय 10 कितना 10 आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया 1। सो देयरफॉर k2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये टाइम t2 कंसीडर कर लेते हैं, 2.303 डिवाइड बाय t2 log टू द बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर, ध्यान देना, फॉर सेम रिएक्शन, अगर आपका रिएक्शन सेम है ना, फॉर सेम रिएक्शन k1 इज इक्वल टू k2, रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पहले का 2.303 डिवाइड बाय t1 into 3 which is equal to 2.303 डिवाइड बाय t2 into 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, दैट इज, ये बनेगा आपका 2.3 कैंसिल हो गया, 3 बाय t1 इज इक्वल टू 1 बाय t2, करेक्ट है ना। सो देयरफॉर t1 इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको क्या मिलेगा, t1 इज इक्वल टू 3 टाइम t2, हेंस प्रूव। ठीक है, आंसर आ गया प्रॉपर्ली, t1 इज इक्वल टू 3 टाइम t2। तो इस तरह से आपने इसका वैल्यू निकाल दिया। सो इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बट दिस विल बी फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। एनी डाउट, इसमें कुछ डाउट है, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। No, sir. हाँ ठीक है, तो यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप रीड करो क्वेश्चन प्लीज। यस बेटा, विजिबल है ना, रीड इट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, क्या दिया है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन क्या दिया है, टी हाफ कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.7 आवर्स, राइट। ए नॉट कितना है इस केस में, ए नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, it will be considered as 100. What is concentration of reactant at time t, that is 100 minus 20%, क्या हो गया है 20% of the reaction to react, but 20% react हो गया, तो ये बनेगा 100 minus 20 which is equal to 80। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, we have to calculate t time, right। तो फॉर्मूला अभी हम लोग को दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। What is the formula for t half, t half is equal to 0.693 divided by k। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log टू द बेस 10 ऑफ a नॉट अपॉन
80। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, अभी उतना आपको कैलकुलेशन करना है, राइट। सो हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, चलो। अकॉर्डिंग टू दैट, T half, for first formula, T half is equal to 0.693 divided by K. Now why we have to calculate, we have to calculate K. आपको क्या निकालना है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, T निकालना है, right? So for this T we require the value of K. ये A0 और AT तो पता है, K का वैल्यू नहीं पता है, तो by using this formula you can calculate the value of K. So therefore K is equal to क्या, K क्या मिलेगा, K is equal to 0.693 divided by T half, which is equal to 0.693 divided by 1.7। आप चाहिए तो इसको अभी रहने दीजिए यहाँ पे एज आवर में, या फिर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो मिनट्स में। मैं यहाँ पे एज इट इज रख रहा हूँ और बाद में मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट में इसको, ठीक है। फाइनल आंसर नाउ, इसका आंसर जो है वो आएगा, वो आपका आ रहा है 0.4076 आवर इनवर्स, ठीक है। ये मिल गया वैल्यू ऑफ के, राइट। तो देखो आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया, इसको हाफ मार्क मिल जाएगा, ये करेक्ट आंसर आ गया आपका, हाफ मार्क इसमें आ जाएगा, राइट। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट, k is equal to 2.303 divided by t, then log to the base 10 of a0 by 80। ये फॉर्मूला लिख दिया आपको, हाफ मार्क विल बी गिवन फॉर दिस फॉर्मूला। नाउ I will first interchange the value, t निकालना तो t को यहाँ पे ले लेता हूँ, 2.303 a log to the base 10 of concentration of A0 upon 80। Now I will substitute the values, फटाफट से substitute कर लेते हैं, that is equal to 2.303। k का वैल्यू कितना मिला हमें, 0.4076, ठीक है। log to the base 10 of A0 कितना है आपका 100 डिवाइड बाय 80 है, 8 मतलब concentration of A at time t is equal to 80 आ गया, तो वो हो गया आपका 2.303 डिवाइड बाय 0.4076 इंटू, यहाँ पे ये बनेगा log टू द बेस 10 ऑफ 10/8, म्हणजे कितना हो गया, मतलब 5/4 ही होगा ना ये भी वापस से, तो ये आ गया 1.25, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था इसका, ठीक है। तो 1.25 का सेम आपको लॉग देखना है, 2.303 इंटू वो सेम मिलेगा 1.25 का लॉग, दैट इज 0.0969, जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड, राइट। तो वही आ गया वैल्यू एंड डिवाइड बाय 0.4076, राइट। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, अगर आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दिया तो आपको यहाँ पे थोड़ा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, डायरेक्ट भी कर सकते हो या लॉग बुक यूज करके करना है तो कर सकते हो एज यू विश। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा 0.5476 आवर मिल गया, क्योंकि आवर यहाँ पे नीचे इनवर्स में था, वो ऊपर हो गया, दैट इज आवर। अभी इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये इसको आप डायरेक्टली 0.5476 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो कन्वर्ट होगा मिनट में। तो ये अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर आया 32.86 minutes. So what is the time required for 20% of the reactant to react, that is equal to 32.86, correct। तो अभी देखो यहाँ पे ये हाफ मार्क हो गया, ये हाफ मार्क हो गया फॉर्मूला के लिए। आप यहाँ पे अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हो प्रॉपर रहेगा सब कुछ, तो इसमें आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। और जो फाइनल आंसर है इसके साथ में यूनिट भी होना चाहिए, मिनट्स और ये, तो ये अगर करेक्ट आंसर है तो इसमें आपको हाफ प्लस हाफ, इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये। तो अगर आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दैट, राइट। फाइनल आंसर ध्यान रखना करेक्ट होना चाहिए, 32.86 जो आपका जो कुछ भी आंसर आ गया वो करेक्ट होना चाहिए एंड यूनिट भी करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है तो आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा, लाइक दैट, ओके। So we have solved n numbers of example also.